for the more interaction between students and the trainers, so that I can give a solution about your questions, your query. तो जो भी आपके माइंड में डाउट है, या आपने कहीं रीड आउट किया था, कहीं आप टीवी चैनल पे कुछ देखा, न्यूज़पेपर पे आपने कुछ पढ़ा, अपने फ्रेंड्स के साथ आपने कुछ डिस्कस किया, किसी पर्सन आपने डिस्कस किया और वो पॉइंट आपको समझ में नहीं आया हो, रेट टू एनी काइंड ऑफ कंसर्न विच आर अंडरकम इन द फाइनेंशियल मार्केट, वो मुझसे आप पूछ सकते हैं. अच्छा, ओके. हाउ मेनी पीपल लाइक फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, कितने लोग हैं जो ग्रेजुएट लाइक ग्रेजुएशन करना चाह रहे हैं या फिर उसी स्टेज पर हैं? एनीवन? ओके. सो ना आप क्या कर रहे हैं बेसिकली अभी? So I'm actually a 12th student right now in commerce, but I Okay. am thinking of doing a BBA in finance. BBA, very nice. So as you are going for the BBA, so definitely you must have a lots of questions related to financial market. You already studying about the commerce, that is ledger and debtors, or lots of things which are already staying in the 12th. So any doubt, any questions related to shareholders, company issuing process, or anything else? No, sir, none for now. But can you? I wasn't able to see the pre-recorded class from day before yesterday. So can you just give a quick recap, please, if it's Okay. needed for today? Yes. So in the first live session, we have discussed about the financial literacy, where we have discussing about the budget process, what are the benefits of financial literacy. Apart from No, that, sir, we have not that discussing. class. I'm talking about like since this class was supposed to be yesterday. Before Okay. that, the pre-recorded class, the three, Yes. usme. So the pre-recorded class already have a like we can say that are topics which are already mentioned on the UA platform site. Still, I am just giving the idea about it. So the second topic was public issuing process, how the public shares are listed over the exchanges, what is the process where the company uh, like raise the funds from the public. Am I right, Samaira? I think यही टॉपिक था या कोई और दूसरा टॉपिक है? Yes, I guess, यही था. ओके. सो बेसिकली हमने जो सेकंड टॉपिक में बात करी है वो यही बात करी है कि पब्लिक इशू कैसे करती है कंपनी, कौन कौन से पब्लिक इशू की प्रोसेस होती है, कौन से पैरामीटर्स होते हैं ताकि जब कंपनी अपना आईपीओ लेके आती है तो उसे फॉलो करना होता है. ये सेकंड में था. एंड इंक्लूडिंग थर्ड में हमने बात करी है फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टॉक मार्केट, where we will discussing about the what are the factors who directly or indirectly impact the stock market, just like politics, inflations, demand and supply, company balance sheet, all the things we are discussing in the pre-recorded sessions. So you just watch that video so you will be aware about it, the basic knowledge about the stock market. Is it clear, Fiona? Yes, sir. Okay. I understood it now. Okay. So we are going for the today's second live session. That is topic is broker. सो अब हम ब्रोकर के बारे में समझने जा रहे हैं कि ब्रोकर क्या है, ब्रोकर बेसिकली कैसे वर्क करते हैं, कौन कौन से ब्रोकर्स इंडिया में अवेलेबल है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो किस ब्रोकर के साथ आपको जाना चाहिए, ब्रोकर के और कौन कौन से वर्क होते हैं. एंड सेकंड थिंग इज दैट डीमेट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट, व्हाट आर द मीनिंग ऑफ डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट, हाउ दे आर वर्क्स, एंड आपको उसकी रिक्वायरमेंट कब होती है, व्हाट आर द प्रोसेस टू ओपन डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट सो दैट यू कैन स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट जर्नी. So I am presenting the screen. I hope, is it visible to you? It's visible? Yes, sir, it's visible. Great. So let's understand the today's session that is called a broker. So broker is an individual or firm that act as an intermediary between the investor and the security exchange. A broker can also refer to the role of firm when it acts as an agent for a customer and charge the customer commission for its services. In short, broker is a breach between two parties. It is a middleman who complete the demand and supply of two party. If one party want to buy a commodity, so the broker will find out the seller, or say that seller can sell the property and buyer can buy the property. So
For this kind of services, for this kind of efforts, broker charge a little bit service fees that is known as a brokerage or a commission. So every industry has their own brokerages, like stock broker, property broker, commodity broker, insurance broker. Every industry has a separate brokers. It depends up to you that broker is fulfill your requirement or not. So in the stock market, broker is a compulsory chain. You cannot skip to the broker. Let's suppose you want to trade over the NSE and you want to purchase the stock of Reliance Industry. So you directly go to the NSE office and telling to them, please purchase my shares of Reliance Industry. So NSE will decline your order because NSE is already exchange. It is not a platform where you can give the order to directly purchase the sale or share. Only company will be listed so that the buyer or seller can make their demand and supply. To fulfillment of this kind of act, exchange appointed as a member, and that member called as a stockbroker. So it means if you want to purchase a shares of Reliance Industry, you need to go very first to the stockbroker's office and telling to them, open my demat or trading account so that I can purchase the shares from the NSE or BSE. So this is the main chain of the stock market, that without broker, you cannot purchase or sell the shares. So in India, there are two types of broker available: full service broker or discount service broker. So mainly full service broker are those broker who provide all in one deal when it comes to trading in a securities market. Securities market is similar to the stock market, is a synonym of stock market. So don't be confused with that. Security market is a synonym of stock market. In addition to providing a platform to trade, they also act as a personal financial advisor and consultant. It means full service broker provide hand holding services. They not only provide you a demat or trading account facility, but they are providing a financial advising like recommendation, tips. They also provide you relationship manager through which you can easily make a conversation about the market. What is the current scenario of the market? I'm facing this kind of issue in my mobile application. There's a KYC issue in my mobile app. So all these services will be available in a one roof. That is known as a full service broker. Now the second is discount service broker. So discount broker only provide you a demat or trading account. They will not provide any kind of extra services. Like you will not receive any recommendation or tips from their side. You will not receive any kind of relationship manager services. Apart from that, you will be not available to go to their offices. Their offices are only virtual mode. Only email and a mobile communication will be available. You cannot directly go to their offices. But for the full service broker, they are already available in the big cities, tier 1, tier 2 cities. So you can easily go to their offices. If your mobile is not working, your email is not working, so you can directly walk in to their offices. So what are the types of full service broker? I am telling to your name: Motilal Oswal, Sher Khan, Swastika Investmart Limited, ICICI Direct, HDFC Securities, SBI Securities. These all are comes from the full service broker. So what about the discount broker? So discount broker are like Zerodha, Angel One, Grow, Upstock, 5paisa. These are the discount broker. I repeat: Zerodha, Angel One, Upstock, 5paisa. These are the discount broker who will provide only mobile application facilities. They cannot provide any kind of tips, recommendation, advice. Whereas Motilal Oswal, Sher Khan, ICICI Direct, HDFC Securities, SBI Securities, Axis Direct, they will provide you demat and
trading facilities, along with that recommendation, tips, relationship manager support, offline service support, online service support, all services will be available with the full service broker. So now the question is there any difference between brokerage of full service broker and discount broker? Do you think that क्या कोई डिफरेंस हो सकता है डिस्काउंट ब्रोकर और फुल सर्विस ब्रोकर की ब्रोकरेज में? कौन ज्यादा ब्रोकरेज लेगा? Sir, फुल सर्विस full ब्रोकर लेगा या फिर service डिस्काउंट ज़्यादा सर्विस ब्रोकर ज्यादा ब्रोकरेज लेगा? Full service broker. Why the full service broker? So because they're providing more services. Exactly. So I am giving an example, or we can understand a case. This case, a person who is very experienced in the stock market, who is already know the technical fundamental analysis, but he want to open a demat account with some broker. So their investment money would be 1 crore rupees. It means वो 1 करोड़ रुपए से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहता है. वो ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस पर्सन है, उसको पता है टेक्निकल एनालिसिस कैसे होता है, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे होता है. ठीक है, अब आप बताइए उसे किस ब्रोकर के साथ में अकाउंट ओपन करना चाहिए, फुल सर्विस ब्रोकर के साथ में या डिस्काउंट ब्रोकर के साथ में? Discount broker. डिस्काउंट. व्हाई द डिस्काउंट? Because he already has knowledge, so he doesn't need any opinion or like tips. Okay, very good. Any other reason? And sir, because he already has the knowledge, the full service broker will also charge him more. The discount broker will charge him less. Yes, very nice. Any other points? Okay, I am before giving my answer, I just giving you a scenario of brokerage. अगर आप फुल सर्विस ब्रोकर के पास जाते हो तो वो जो ब्रोकरेज लेगा वो परसेंटेज के बेसिस पर लेगा. इट मींस डजंट मैटर आप कितनी बार ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, आपके ऑर्डर की वैल्यू कितनी है उस पर वो उसकी ब्रोकरेज चार्ज करेगा. तो फॉर एन एग्जांपल, जो जनरली प्रैक्टिस है मार्केट के अंदर वो है 0.03%, दैट इज 3 पैसा on the 100 rupees. If you purchase the stock of 100 rupees, you just need to pay 3 पैसा. ओके, तो इसको हम बोलते हैं 0.03% ब्रोकरेज. पर वहीं पर अगर आप डिस्काउंट ब्रोकर के साथ में ट्रेड करते हो तो यहां पर आपको मैक्स टू मैक्स 20 रुपीज की ब्रोकरेज देनी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर अमाउंट. आप भले 1 करोड़ रुपए के शेयर परचेस करें या फिर आप 10 लाख रुपए के शेयर परचेस करें, मैक्स टू मैक्स आपको 20 रुपीज की ब्रोकरेज ही देनी है. बट वहीं पर फुल सर्विस ब्रोकर के साथ में अगर आप 1 करोड़ रुपए के शेयर परचेस करेंगे और 0.03% का ब्रोकरेज चार्ज है, तो इट वुड बी अराउंड 300 रुपीज. तो इतना ब्रोकरेज आपको ज्यादा देना पड़ेगा. फिर भी most of the people likely to open the account with full service broker despite their knowing that कि यहाँ पर ब्रोकरेज जो है बहुत ज्यादा है. उसका रीजन ये कि मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था उस एग्जांपल में अगर मैं वो पर्सन होता तो मैं फुल सर्विस ब्रोकर के साथ में अकाउंट ओपन करता, ना कि डिस्काउंट ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करता. कैन यू गिव मी आंसर? ऐसा क्यों मैंने चूज किया? सर क्योंकि वो परसेंटेज कम लेंगे आपके पूरे जो नहीं, गेम्स में. डिस्काउंट से तो ज्यादा ही ब्रोकरेज मुझे पे करनी होगी. एक सिनेरियो बता देता हूँ. इफ यू वांट टू परचेज द शेयर्स फॉर द लॉन्ग टर्म होल्डिंग, अगर आप होल्डिंग करते हैं अपने शेयर्स को, अगर अपने शेयर्स को आप लंबे समय के लिए अपने पास में रखते हैं तो उसमें आपको डिस्काउंट ब्रोकर कोई भी ब्रोकरेज नहीं लेगा. डेट वुड बी कंप्लीटली फ्री. वहीं पर फुल सर्विस ब्रोकर आपसे ज्यादा ब्रोकरेज लेगा, दैट इज 0.30%, 30 पैसा. अगर आप डिलीवरी में या होल्डिंग में शेयर परचेस करेंगे तो 30 पैसा की ब्रोकरेज देनी पड़ेगी ऑन द 100 रुपीज. बट वहीं पर अगर आप डिस्काउंट ब्रोकर में अगर डिलीवरी में शेयर परचेस करेंगे तो आपको 0 ब्रोकरेज देनी है. सर तो इसलिए भी वो यूज कर सकता है क्योंकि फिर उसे एक सेकंड ओपिनियन मिल जाएगा. Second, but that person is already knowledgeable about the market. It doesn't require any kind of opinion. Sir, समझ नहीं आ कि मतलब why we are choosing full service broker. Yes. So the answer is that. Let's suppose Samaira, that person is you. You want to start the investment with the 1 crore rupees and with the Zerodha. Okay, so Zerodha is a discount service broker who will provide only mobile application. Now,
somehow your mobile application get stuck or your mobile get hanged Hmm. or you want to close your position, like market drastically going downside, but you are not able to close your position. Now you are trying to contact the customer number. आप कस्टमर केयर नंबर पे कॉल कर रहे हैं और मे बी ये इशू बाकी सारे इन्वेस्टर के साथ भी हो रहा हो, तो डू यू थिंक कि आपका जो कॉल है वो इमीडिएटली कनेक्ट हो जाएगा कस्टमर केयर पे? नहीं. नहीं होगा. यू वुड बी इन क्यू. और हो हम्म. सकता है कि जब तक आपका नंबर आए तब तक मार्केट और ज्यादा नीचे जा चुका हो और आपको हेवी नुकसान हो जाए. Mm-hmm. इट इज अ रीजन. उसको प्रिवेंट करने के लिए मेजरली ऑफ द HNI हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स और बिग इन्वेस्टर चूज फुल सर्विस ब्रोकर. बिकॉज अगर एक कंडीशन फुल सर्विस ब्रोकर के साथ में होती तो मैं अपने RM को कॉल कर सकता था. मैं RM को कॉल करने के अलावा मैं अपने ब्रांच हेड को कॉल कर सकता था. ब्रांच हेड को कॉल नहीं किया तो मैं वॉक इन के लिए ऑफिस में जा सकता था. वहां से अगर सॉल्यूशन नहीं मिलता तो मैं डेफिनेटली फिर कस्टमर केयर नंबर पे कॉल कर सकता था. तो आई हैव मल्टीपल ऑप्शंस कि कस्टमर केयर नंबर पे कॉल नहीं लग रहा है तो मैं ब्रांच विजिट कर लूँ. वहां नहीं लग रहा है तो मैं अपने RM के पास चले जाऊँ. मेरा RM फोन नहीं कर रहा तो RM के सीनियर जो कि ब्रांच मैनेजर है उसको मैं कॉल कर लूँ. Okay. So that is the reason big investors or big trader likely to open account with the full service broker. कि उन्हें पता है कि सर्विसेज यहाँ पर मुझे ज्यादा प्रीमियम और ज्यादा कस्टमाइज मिलती है. मेरी चॉइस के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पर सारी चीजें मिलेगी. बट डिस्काउंट ब्रोकर में आप भले 10 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करें या फिर आप 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करें, आपको इक्वल ही ट्रीट किया जाएगा. यू विल नॉट रिसीव एनी काइंड ऑफ प्रीमियम कस्टमाइज सर्विसेज. वहीं पर अगर मान लीजिए कोई ऐसा पर्सन है जो कि एक इन्वेस्टर है और वो सिर्फ और सिर्फ ओनली लॉन्ग टर्म होल्डिंग करना चाहता है और उसको पता है कि कौन सा स्टॉक अच्छा है क्योंकि वो थोड़ा बहुत फंडामेंटल एनालिसिस कर लेता है, तो इस कंडीशन में आप किसे प्रीफर करेंगे, फुल सर्विस ब्रोकर को या डिस्काउंट ब्रोकर को? Discount. Discount, because in that condition you want to hold your share for the long term. You don't require any kind of like immediate response. मैंने अभी शेयर बाय किया है, मैं 1 साल के बाद 2 साल के बाद बेचना चाहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं. मेरी मोबाइल एप्लीकेशन अगर आज खराब भी हो गई है, मेरा मोबाइल वर्क नहीं कर रहा है, तो मैं कल भी बेच सकता हूँ, परसों बेच सकता हूँ. मुझे सिर्फ रिक्वायरमेंट नहीं कि आज के आज ही बेचना है. सो इट्स डिपेंड योर पर्सपेक्टिव, इट डिपेंड ऑन योर नीड कि आप बेसिकली क्या है. आप एक इन्वेस्टर हैं क्या आप एक ट्रेडर हैं? अगर ट्रेडर हैं तो यूजुअली फुल सर्विस ब्रोकर के साथ में जाइए. अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो डिस्काउंट ब्रोकर के साथ भी जा सकते हैं. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड क्या कॉन्सेप्ट है फुल सर्विस का और डिस्काउंट ब्रोकर का? Yes, sir. आई वांट रिप्लाई फ्रॉम एवरीवन. सियोना, दक्ष, इश्विन. Yes, I understood. ठीक है. Moving ahead, insurance broker available in India, real estate broker also available in India. So forex broker, that is very important. Let's suppose you want to trade in a currency and the currency like dollar, euro, Japanese yen and pound. So there are forex broker available in the market. So you can easily trade in this kind of currency. But it depends on you that which broker you are choosing. If you want to convert your currency in a physical manner, so you can go to your banks, RBI offices or any agent which is act as a forex broker. But you want to trade over the exchange, you want to make some profit, you want to make some kind of risk, that the brokers will available that allow only 4 currency to trade. Number 1 dollar, number 2 euro, number 3 Japanese yen, and number 4th, can anybody tell me? First is dollar, second is euro, third is Japanese yen, and what would be 4? Pounds, I guess. GBP, Great Britain Pound. So आप ओनली 4 करेंसी में ही ट्रेड कर सकते हैं अगर आपको एक्सचेंज पर ट्रेड करना है तो. मान लीजिए आपने अपना डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लिया है, आप इक्विटी मार्केट में तो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, अब आपको लगा कि यार करेंसी मार्केट में भी कर लेना चाहिए, तो आप उसी डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट से ही करेंसी मार्केट में भी ट्रेड कर सकते हैं.
तो अगर ऐसी कोई Sir, ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो 4 करेंसी अवेलेबल होगी. यस सीरो. sir, can you explain the concept of trading in forex? I don't understand कि उसमें trade करने के लिए क्या होगा? Okay, let's suppose you are assuming that India is growing and India's currency will appreciate. India's currency will appreciate in terms of dollar. It means अगर इंडिया की करेंसी अप्रिशिएट हो रही है तो डॉलर बढ़ेगा या गिरेगा हमारे लिए? ऑब्वियसली डॉलर गिरेगा, हमारी करेंसी अप्रिशिएट होगी. तो अगर आपको लग रहा है कि डॉलर का प्राइस गिरने वाला है, आपको ऐसा अजम्पशन लग रहा है, समथिंग कुछ ऐसा फिशी चल रहा है अमेरिका के अंदर जिसकी वजह से अमेरिकन डॉलर की रेट गिर सकती है, तो फिर आप अमेरिकन डॉलर में ट्रेड कर सकते हैं. यू विल बी मेक अ पोजीशन ऑफ शॉर्ट सेलिंग, कि आपने पहले डॉलर को बेच दिया है, जब प्राइस नीचे आ जाएगा तो उसको खरीद के आप अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे. सिमिलरली यू आर अज्यूमिंग डेट कि यूरो का प्राइस बढ़ने वाला है. अभी यूरो लेट सपोज 98 रुपीज के आसपास चल रहा है और ये 100 रुपीज तक रीच आउट हो जाएगा एंड यू वांट टू मेक अ प्रॉफिट विद दैट कंडीशन. तो आप क्या करेंगे, यूरो परचेस कर लेंगे और 1-2 दिन के बाद यूरो का प्राइस जब बढ़ जाएगा तो उसको आप सेल कर देंगे. सिमिलर लाइक स्टॉक्स. तो जैसे स्टॉक्स में प्राइस अप और डाउन होते हैं, वैसे करेंसी के प्राइस भी अप एंड डाउन होते हैं फॉर द ट्रेडिंग रीजन. Sir, एक और क्वेश्चन था, इसमें पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं इस मार्केट में? फॉरेक्स में हाँ सर, फॉरेक्स में लाइक पार्टिसिपेंट्स कौन? all the participants are similar because it is also part of capital market. So they are investor अच्छा, और trader. understood. तो ट्रेडर देखिए, हाँ, there is a amendment 6 months before that everyone can participate in the forex market. अगर मैं बात करता हूं डॉलर, यूरो, जापानीज येन की, जो कि एक्सचेंज पर ट्रेड होती है, तो पहले कोई भी व्यक्ति, मैं हो, आप हो, एनीबडी, भले भी रिटेल इन्वेस्टर हो, बिग इन्वेस्टर हो, फॉरेन इन्वेस्टर हो, एनीबडी कैन इन्वेस्ट और ट्रेड इन द फॉरेक्स मार्केट. बट सेबी ने 6 महीने पहले एक रेजोल्यूशन लेके आया है, अब वो सिर्फ वही लोग फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं जिनके पास फॉरेक्स का फिजिकल एक्सपोजर है. फिजिकल एक्सपोजर का मतलब होता है कि आप ऑलरेडी किसी फॉरेन करेंसी के बिजनेस में इन्वॉल्व हो. जस्ट लाइक आप या इंपोर्टर हो, या कोई एक्सपर्टर हो, आप कोई एजेंट हो, आप कोई फिजिकल करेंसी में अपने हेज करते हो पोजीशंस को. अगर इस तरह की कंडीशन है तो आपको प्रूफ देना होगा अपने ब्रोकर को कि मैं इस तरह का व्यापार करता हूं, बिजनेस करता हूं, मैं एक इंपोर्टर हूं, एक्सपोर्टर हूं और मुझे करेंसी में अपनी पोजीशन बनानी होती है. दैट इज द रीजन मैं करेंसी मार्केट में ट्रेड करने के लिए जा रहा हूं. तो वो जब आप अपना एक्नॉलेजमेंट और सर्टिफिकेट देते हैं तब जाके आप फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड कर पाएंगे. टिल द ट्रेड यू विल बी नॉट अलाउड टू ट्रेड इन द फॉरेक्स मार्केट, especially on the exchanges. Is it Okay, clear? sir, understood. Yes, sir. Okay. Yeah. पहले क्या होता था, पहले कोई भी व्यक्ति ट्रेड कर लेता था. इससे होता क्या था कि स्पेकुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता था. स्पेकुलेशन मतलब था सट्टेबाजी, जिससे जो एक्चुअल इंडियन करेंसी की जो प्राइस थी उससे ज्यादा वो इन्फ्लेटेड दिखाई देती थी. तो उसको रोकने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए सेबी ने डिसीजन बनाया कि जो फॉरेक्स मार्केट है वो सिर्फ हेजिंग करने का टूल है. दिस इज नॉट अ टूल फॉर द स्पेकुलेशन. इससे स्पेकुलेशन नहीं किया जा सकता. मूविंग अहेड, द नेक्स्ट टॉपिक इज डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट. So what is a demat and trading account? So I am telling this in a simple language. जिस तरह से आपको अपने बैंक के अंदर एफडी करानी होती है, रिकरिंग डिपॉजिट कराना होता है, या भी कोई अपना अमाउंट डिपॉजिट करना होता है, तो आपको एक बैंक अकाउंट की जरूरत होती है. सिमिलरली स्टॉक मार्केट में अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आपको डीमेट अकाउंट की जरूरत होती है. सो बेसिकली डीमेट अकाउंट आपके इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स को रखने का काम करता है. अगर मैं आज से 30 साल पहले की बात करूं या 40 साल पहले की बात करूं, तो पहले शेयर्स में जो ट्रेडिंग होती थी वो फिजिकल मैनर में होती थी. इट मींस इफ यू आर परचेसिंग द शेयर्स तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता था, एक पेपर आपको मिलता था, दैट पेपर शोइंग डेट कि यू आर अ शेयर होल्डर ऑफ पर्टिकुलर कंपनी.
अगर आपको अपने शेयर को बेचना है तो पेपर आपको बायर को देना होता था, ताकि आप अपने शेयर को ट्रांसफर कर रहे हैं सामने वाली पार्टी को। तो वो जो डॉक्यूमेंट होते थे वो या तो वो पेपर जल जाते थे, डिस्ट्रॉय हो जाते थे, मिसप्लेस हो जाते थे। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए एक्सचेंज ने एक नया टेक्नोलॉजी के साथ आए। उन्होंने क्या करा कि जितने भी फिजिकल शेयर्स थे कंपनी के, उसको कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। तो जब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तब आपको उसको स्टोर करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी। जस्ट रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट। उस इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट को हम बोलते हैं डीमेट अकाउंट। सो बेसिकली डीमेट अकाउंट का वर्क होता है कि जो भी शेयर्स आपने एक्सचेंज से परचेज किए हैं, उसे आप सेफली लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। नॉट ओनली शेयर्स, यू कैन कीप योर म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स और इवन ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। आप किसी को भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। तो डीमेट अकाउंट का मेनली वर्क होता है कि जो भी शेयर्स आपने NSE से या BSE से परचेज करे हैं, उसे आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। अब एक क्वेश्चन है, मान लीजिए दक्ष, आपने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में रिलायंस के शेयर परचेज किए हुए थे। आपको 10 साल के बाद लगता है कि साइबर क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है और मुझे बिलीव नहीं है कि मेरे शेयर सेफ रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो मैं अपने शेयर को फिर से फिजिकल पेपर में कन्वर्ट करना चाहता हूं। क्या ये पॉसिबल है? कैन यू टेल मी यस और नो? नॉट श्योर। ओके, सियोना, समायरा, कैन यू टेल मी, क्या ये पॉसिबल है? क्या मैं अपने शेयर्स को फिर से फिजिकल में कन्वर्ट कर सकता हूँ? Yes. Yes. No, sir. It's not possible. I think it can be. No, I studied somewhere, like in my syllabus, that nowadays you have to make a Demat account to trade. Okay. Okay. So the answer is yes. You can convert your shares from Demat to Remat. Remat मतलब rematerialization. It means you can convert your electronic shares once again in a physical copies. इसलिए डीमेट अकाउंट इट इज नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है कि डीमेट अकाउंट आपके पास में हो। डीमेट अकाउंट की रिक्वायरमेंट आपको शेयर को खरीदते या बेचते वक्त होती है। तो फॉर एन एग्जांपल, आपसे हो ना, यू आर लुकिंग डेट कि यार ना, मुझे नहीं पता है कि मेरे शेयर्स कहाँ रहेंगे क्या नहीं रहेंगे, मुझे याद नहीं रहता इतना कुछ, तो मैं अपने जितने भी पोर्टफोलियो में रखे हुए शेयर्स हैं, इनको मैं फिर से कन्वर्ट कर लेती हूँ अपने फिजिकल डॉक्यूमेंट में, ताकि मैं उसको अपने लॉकर्स में बैंक में रख सकती हूँ। यस, दैट कैन बी पॉसिबल। बट हाँ, अगर आपने अपने शेयर्स को कन्वर्ट कर लिया फिजिकल मैनर में, तो फिर आप उसको बेच नहीं सकते। अगर आपको अपने शेयर को बेचना है तो वापस से आपको डीमेट में कन्वर्ट कराना होगा। तो इन शॉर्ट, ट्रेडिंग करने के लिए आपको डीमेट में ही अपने शेयर को रखना होगा, बाकी लॉन्ग टर्म रखने के लिए उसको आप फिर से रीमेट पे रख सकते हैं। तो मतलब एट ए टाइम पर्सन दोनों जगह भी रख सकता है? नहीं, दोनों जगह नहीं, दोनों में से एक जगह होगा, या तो मतलब फिजिकल में होगा या अगर- इलेक्ट्रॉनिक में होगा। Okay. सर ऐसा क्यों है कि अगर आपने उसे फिजिकल में कर दिया तो आप सेल नहीं कर सकते उसे? द रीजन शेयर इज को। दैट सेबी ने रूल बना दिया है कि अब जो ट्रेडिंग होगी उसे डीमेट फॉर्मेट पे ट्रेडिंग होगी, फिजिकल मैनर में ट्रेडिंग नहीं हो सकती है। इसका रीजन ये है कि एक्सचेंज जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली हो गया है। एक्सचेंज जब इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर एक्सेप्ट करेगा, फिजिकल में कैसे ऑर्डर एक्सेप्ट करेगा वो? राइट, ओके सर। सो इट्स अप टू यू। आपने सुना होगा बहुत बार कि एक पर्सन है, या हो सकता है कि आपके फ्रेंड हो, उनके दादाजी ने इतने शेयर्स बहुत पहले परचेस कर रखे थे, उसके सर्टिफिकेट आज जाके मिले हैं। तो आज जाके सर्टिफिकेट मिले हैं तो उसका क्या होगा? करना कुछ नहीं है, आपको उन सर्टिफिकेट को अपने ब्रोकर के पास लेके जाना, जिसके साथ अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं। उसके बाद जाइए, सर्टिफिकेट को सबमिट करिए, वो सारे सर्टिफिकेट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे और वो डीमेट पे ट्रांसफर हो जाएंगे। फिर आप उसको जब बेचना चाहें तब आप उसको बेच सकते हैं। अच्छा, एक बात बताएं, ये तो समझ में आ गया है कि डीमेट की जितने भी शेयर्स थे, ऑलमोस्ट शेयर जो थे वो ट्रांसफर हो गए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, पर इनकी फिजिकल कॉपीज किसके पास है? आपने सबमिट किया होगा तभी जाके इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट हुए होंगे, और वो फिजिकल कॉपीज कहां पर रखाई है? कहीं तो रखी होगी। एग्जैक्टली, डिपॉजिटरीज के पास है।
दैट इज CDSL एंड NSDL। तो CDSL और NSDL बेसिकली आपके शेयर्स को सेफ गार्ड करने का काम करते हैं कि जितने भी फिजिकल शेयर्स आज तक ट्रेडेड हुए हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट से अगेन फिजिकल में कन्वर्ट करना, ये सारा काम डिपॉजिटरीज का है। सो देयर इज क्वेश्चन, मान लीजिए आपने एंजल वन के साथ में अपना अकाउंट ओपन किया था एंड सम ऑफ द रीजन आफ्टर 10 साल के बाद में एंजल वन बंद हो जाता है। आपने अपना पोर्टफोलियो एंजल वन के साथ रखा हुआ था, अब अगर एंजल वन अपना ब्रोकर ही बंद हो जाएगा तो फिर आपके शेयर्स का क्या होगा? क्या आपके शेयर्स डूब जाएंगे? क्या आपका इन्वेस्टेड मनी डूब जाएगा? यस और नो? एनीवन? सर आई गेस डूब ही जाएगा। डूब जाएगा? नहीं डूबेगा। ब्रोकर इज ओनली अ मीडिएटर who helps to you placing the order from investor to exchange। इसके अलावा ब्रोकर के पास और कोई राइट्स नहीं है। सो अगर आपने कोई शेयर्स एंजल वन के साथ, जीरोडा के साथ, अपस्टॉक के साथ, ग्रो के साथ अपने रखे हुए थे और अगर वो ब्रोकर बंद भी हो जाते हैं सो डोंट वरी, क्योंकि ये शेयर ब्रोकर के पास में नहीं है, ये बेसिकली शेयर्स डिपॉजिटरीज के पास है, CDSL के पास है, NSDL के पास है। आप डायरेक्टली CDSL को कॉल करिए, ईमेल करिए कि ये मेरा डीमेट अकाउंट नंबर था, ये मेरे इतने शेयर्स रखे थे और मुझे अपने शेयर ट्रांसफर करने हैं फ्रॉम वन ब्रोकर टू अनदर ब्रोकर, और डेफिनेटली वो आपकी हेल्प करेंगे और आप अपने शेयर वापस से रिट्राइव कर सकते हैं। इसीलिए स्टॉक मार्केट को बिल्कुल सेफ माना जाता है कि आपका ब्रोकर डूब भी जाएगा तो भी आपके शेयर्स का नुकसान नहीं होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस यस सर। यस, एनी क्वेश्चन? ओके, क्या मैं एक डीमेट अकाउंट के साथ मल्टीपल ब्रोकर में अकाउंट ओपन कर सकता हूं? इज इट पॉसिबल? मैंने एंजल वन में अपना डीमेट अकाउंट ओपन किया है, क्या मैं उस डीमेट अकाउंट को मोतीलाल के साथ, HDFC के साथ और जीरोडा के साथ मैप कर सकता हूं? मतलब मैं परचेज कहीं से भी करूं शेयर्स, मेरे शेयर्स एंजल वन के डीमेट अकाउंट में ही जाने चाहिए, क्या ये पॉसिबल है? यस, पॉसिबल है। इसका मतलब ये होता है कि डीमेट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट बोथ आर डिफरेंट। ट्रेडिंग अकाउंट कितने भी ओपन कर सकते हैं, डीमेट अकाउंट भी कितने भी आप ओपन कर सकते हैं। बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट का वर्क होता है कि आप जो अपना ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, वो आपके अकाउंट से जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, वो ट्रेडिंग अकाउंट का काम होता है। तो मान लीजिए मैंने एंजल वन के साथ अपना अकाउंट ओपन किया, जिससे मैंने डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों ओपन किया। अब मैंने एंजल वन की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली थी। जैसे ही मैंने मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड की, मैंने अपना KYC कंप्लीट कर लिया, मेरा फाइनली डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले फंड ट्रांसफर करूंगा अपने ट्रेडिंग अकाउंट में। तो मैं अपने जो बैंक अकाउंट है, सेविंग बैंक अकाउंट है मेरा, उससे मैं मनी ट्रांसफर करूंगा एंजल वन के ट्रेडिंग अकाउंट में। तो मान लीजिए मैंने 10,000 रुपीज का अमाउंट ट्रांसफर कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, अपनी मोबाइल एप्लीकेशन में सर्च बार में जाके कोई भी स्टॉक को परचेस को सर्च करूंगा जो मैं परचेस करना चाहता हूं। तो मान लीजिए मैं टाटा स्टील को परचेस करना चाहता हूं, तो मैं टाटा स्टील को सर्च करूंगा, वहां पे अपनी क्वांटिटी लिखूंगा, कितनी क्वांटिटी मुझे बाय करना है, मैं अपना प्राइस लिखूंगा, किस प्राइस पर मुझे बाय करना है, वो बाय ऑर्डर प्लेस कर दूंगा। तो जैसे ही बाय ऑर्डर प्लेस करूंगा, मेरा अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा। तो ये सारे ट्रांजेक्शन किससे हुए हैं? ट्रेडिंग अकाउंट से हुए हैं। अब क्या होगा, बाय करने के बाद अगले दिन वो शेयर्स मेरे डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। सो डीमेट अकाउंट का काम होता है सिर्फ आपके शेयर को स्टोर करना। 1 साल के बाद आपको लगा कि टाटा स्टील का प्राइस बहुत ऊपर आ चुका है, मुझे यहां पर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, तो आप अगेन अपनी मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, टाटा स्टील के शेयर के लिए सेल बटन आप प्रेस करेंगे और आपका शेयर सेल हो जाएगा। ये ट्रांजेक्शन कहां से हुआ है? ट्रेडिंग अकाउंट से हुआ है। पर ये शेयर के वाकई में सेल हो गए हैं? नहीं हुए हैं। अभी आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया है, आपका ऑर्डर कंफर्म्ड हो गया है, अब ये शेयर आपके डीमेट अकाउंट से कल की डेट में निकलेंगे। तो ट्रांजैक्शन जो होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू होता है, पर जो कंफर्मेशन होता है वो डीमेट अकाउंट के थ्रू होता है। सो डीमेट अकाउंट का वर्क सिर्फ आपके शेयर्स को स्टोर करना है,
बाकी जो आप शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट से कर सकते हैं। इतना समझ में आया? Yes, sir. ग्रेट। Yes, sir. अब मेरा क्वेश्चन समझिएगा। मैंने ये क्वेश्चन आपसे पूछा था कि मैंने एंजल वन के साथ पर डीमैट अकाउंट ओपन किया है, क्या मैं मोतीलाल जिरोड़ा जैसे ब्रोकिंग फर्म के साथ भी सेम डीमैट अकाउंट को मैप कर सकता हूं? यस, आप कर सकते हैं। अगर आपने एंजल वन के अंदर एक डीमैट अकाउंट ओपन किया है, उस डीमैट अकाउंट को मोतीलाल के साथ भी मर्ज कर सकते हैं, आप ग्रो के साथ भी मर्ज कर सकते हैं, आप स्टॉक के साथ भी मर्ज कर सकते हैं। वहां पर आपसे अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लीजिए। अगर आप मोतीलाल से अगर आप शेयर परचेस करेंगे तो आएंगे आपके एंजल वन के डीमैट अकाउंट में ही। तो हर जगह पर आपको बार बार नया नया डीमैट अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है। आप एक ही डीमैट अकाउंट से मल्टीपल ब्रोकर के साथ में ट्रेड कर सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन बहुत कम लोगों को पता है। किसी से पूछेंगे तो एवरीवन सेइंग दैट नहीं, आप कहीं भी अकाउंट ओपन करने जाइए डीमैट कंपलसरी है। नहीं, बिल्कुल कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास पहले से एक डीमैट अकाउंट है तो आपको दूसरे ब्रोकर के साथ में डीमैट अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है। पहले ब्रोकर का डीमैट अकाउंट भी आप दूसरे ब्रोकर के साथ में मैप्ड कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट दक्ष, समायरा? Yes, sir. Yes, sir. Great. So basically, what are the difference between demat trading account? So trading account usually opened by the broker, but demat account is opened by the depository. ट्रेडिंग अकाउंट इज अ गेटवे टू स्टॉक एक्सचेंज। आपको अपना को ऑर्डर प्लेस करना है, शेयर बाय सेल करने हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट की रिक्वायरमेंट है। पर शेयर बाय करने के बाद तो कहां पर स्टोर होंगे? वो डीमेट अकाउंट में स्टोर होंगे। शेयर सेल करने के बाद किस जगह से निकलेंगे? वो डीमेट अकाउंट से निकलेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट के लिए कोई भी अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस नहीं लिया जाता है। पर डीमेट अकाउंट अगर आपने ओपन किया है तो आपको एवरी ईयर अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस देने पड़ेंगे, दैट इज AMC, वेदर यू आर डूइंग ट्रेडिंग और नॉट। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप ट्रेडिंग करें या ना करें, उसको मेंटेन करने के लिए आपको अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस हर साल देने पड़ते हैं। पर ट्रेडिंग अकाउंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसमें कोई अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस देने की जरूरत नहीं होती है। अब मान लीजिए मुझे गोल्ड में ट्रेड करना है, आई वांट टू ट्रेड इन गोल्ड। क्या मुझे डीमैट और ट्रेडिंग दोनों की रिक्वायरमेंट होगी या फिर ट्रेडिंग अकाउंट से मैं गोल्ड में ट्रेड कर सकता हूं? टेल मी। मुझे लग रहा है कि गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा और मुझे गोल्ड में ट्रेड करना है, तो उसके लिए मुझे डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों की रिक्वायरमेंट होगी या फिर ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके मैं गोल्ड में ट्रेड कर सकता हूं? Sir, बताएं। I I guess you would not need a demat account. Why? Sir, because you mentioned कि it's not compulsory to open a demat account and trading account से हो जाती है transactions. Yes, but there is some clarification. डीमैट अकाउंट की जरूरत आपको स्टॉक्स पे म्यूचुअल फंड्स के लिए है। गोल्ड इज नॉट अ स्टॉक, गोल्ड इज अ कमोडिटी। सो कमोडिटी के लिए आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं होती है, आप ट्रेडिंग अकाउंट से भी कर सकते हैं। तो आप गोल्ड में ट्रेड करना चाहे, सिल्वर में करना चाहे, क्रूड में ट्रेड करना चाहे, इवन एग्री कमोडिटी लाइक सोयाबीन, जीरा, चना, इसमें अगर आप ट्रेड करना चाहें तो ट्रेडिंग अकाउंट से भी कर सकते हैं। आई वॉन्ट टू ट्रेड इन US डॉलर, क्या मुझे डीमैट अकाउंट की रिक्वायरमेंट होगी या ट्रेडिंग अकाउंट से काम चल जाएगा? समायरा, कैन यू गिव द आंसर? Sir, can you repeat the question? समझ नहीं आया एक बार. ओके, आई वांट टू ट्रेड इन US डॉलर। ओके, क्या मुझे डीमैट अकाउंट भी ओपन करना पड़ेगा या फिर ट्रेडिंग अकाउंट से ही मैं US डॉलर में ट्रेड कर सकता हूँ? I think you can trade with the trading account Only. I because don't require any demat account for the US dollar. yeah, but Sir, because your money is getting stored in trading account also, right? Yes, money is storing in the trading account, but the shares will store in demat account, so that currency is not a share. So मुझे डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं है, मैं ट्रेडिंग Yeah. अकाउंट से भी करेंसी में ट्रेड कर सकता हूँ।
सो इन सिंपल, डीमेट अकाउंट की जरूरत आपको सिर्फ और सिर्फ जब आप शेयर्स में ट्रेड कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या फिर बॉन्ड्स में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तभी होगी। बाकी आप करेंसी में ट्रेड करें, फ्यूचर ऑप्शंस में ट्रेड करें, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन जो कि बहुत ट्रेंडी है, उसमें आप ट्रेड करें, आपको ट्रेडिंग अकाउंट से भी काम चल जाएगा, डीमेट की कोई जरूरत नहीं है। Sir, bonds, what are that? Bonds. So bonds are a risk-free instrument where the lender will give a guarantee that if you would give me a money, I will pay back to you after some time of period with some kind of interest. So let's suppose समायरा, मैं एक गवर्नमेंट हूं, मुझे रिक्वायरमेंट है मनी की, तो मैंने पब्लिक को बोला या आपको बोला कि आप मुझे 10,000 रुपीज दीजिए 5 ईयर के लिए, आफ्टर 5 ईयर मैं आपको 11,000 रुपये दूंगा। Okay. तो आपके लिए क्या हो गया, ये इन्वेस्टमेंट हो गया। 10,000 रुपए दे के आप 11,000 लेंगे 5 साल के बाद, और मेरे लिए ये फंड रेस करने का इंस्ट्रूमेंट हो गया है। क्योंकि बॉन्ड गवर्नमेंट इशू करती है, इसलिए यहाँ पर रिस्क फ्री होता है। यहाँ पर आपका पैसा डूबने के कोई चांसेस नहीं होते हैं। आपका मनी तब डूबेगा जब गवर्नमेंट डूबेगी, और इंडियन गवर्नमेंट डूबने के कोई चांसेस नहीं है। इसलिए बॉन्ड जो होता है वो रिस्क फ्री इंस्ट्रूमेंट होता है। आप आंख बंद करके कितना चाहे लाखों करोड़ों पैसा इन्वेस्टमेंट करिए, आपका मनी कभी नहीं डूबेगा। So it's between the government and the people, or it can be between two people Yes. also? No, it's between the government and people. Okay, okay. Okay. And the second thing also happen with the commercial or companies. कोई कंपनी जब इस तरह का इंस्ट्रूमेंट इशू करती है जहां पे वो बोलती है कि आप मुझे पैसा दीजिए, 5 साल के बाद, 10 साल या 15 साल के बाद मैं ब्याज के साथ आपको पैसा लुटा दूंगा या लुटा दूंगी, तो उसको हम बोलते हैं कमर्शियल बॉन्ड या डिबेंचर्स। आप समवन सेइंग दैट कि आप कॉमर्स में है, तो कॉमर्स जो भी कर रहा है, करने वाले हैं, उस पर डिबेंचर नाम का वर्ड आएगा। तो डिबेंचर मतलब होता है ऋण पत्र, जहां पर आप पब्लिक से लोन ले रहे हैं और कुछ सर्टेन पीरियड के बाद तक उनको पैसा चुका देंगे। क्योंकि ये कंपनी से होती है, तो कंपनी डूब गया तो आपका पैसा भी डूब जाएगा। इसलिए कंपनी के साथ अगर आप इस तरह का कोई इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लिटिल बिट रिस्कियर होता है, पर वहीं पे गवर्नमेंट के साथ जब आप करते हैं तो रिस्क फ्री होता है। जैसे कि NHAI, व्हाट इज द फुल फॉर्म NHAI? आपने वर्ड सुना होगा ये। जब भी आप कहीं रोड ट्रेवल करते हैं तो आपने सुना होगा NHAI। टोल टैक्स पे कहीं सुना है आपने, जब आप टोल Sir, टैक्स देते हैं? National Highway Authority of India. एग्जैक्टली। सो बेसिकली NHAI का वर्क होता है रोड डेवलपमेंट करना, रोड्स बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। तो NHAI को फंड की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि उनके एक भी अगर उनका प्रोजेक्ट है तो 1000 करोड़ के अंदर, 500 करोड़ के आसपास जाता है, तो उनको फंड की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो क्या करते हैं, अपने बॉन्ड जारी करते हैं। तो आप मनी कंट्रोल पे या गूगल पे डालेंगे NHAI बॉन्ड्स, आप सर्च करेंगे तो वहां पर आपको दिख जाएगा कि इतने ईयर्स के लिए NHAI आपसे पैसा मांग रही है और इतने इंटरेस्ट के साथ आपको वो पैसा लौटा देगी। दैट इज कॉल्ड अ बॉन्ड। अंडरस्टूड? बॉन्ड का मतलब क्या होता है समायरा? Yes. हाँ, बॉन्ड समझ में आ गया? आपने क्वेश्चन पूछा Yes, था ना? yes. हाँ, yes, I got it. सो अगर आप बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, शेयर्स में कर रहे हैं, या फिर आप लाइक म्यूचुअल फंड्स में कर रहे हैं, आपको डीमेट अकाउंट की रिक्वायरमेंट है और ट्रेडिंग दोनों की रिक्वायरमेंट है। पर अगर आप करेंसी में, कमोडिटीज में, डेरिवेटिव में ट्रेड कर रहे हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट ही काफी है, डीमेट की रिक्वायरमेंट नहीं भी है, चल जाएगा काम आपका। So what are the modes of trading? So there are two types of mode of trading: offline trading and online trading. Offline trading means you are using a phone to placing an order, or you are walking through to the office. आप चल के जा रहे हैं ऑफिस में, या फिर आप फोन पर अपने ब्रोकर को फोन ला के बोल रहे हैं कि मेरा ये शेयर परचेस कर लीजिए, शेयर सेल कर लीजिए। That is known as offline trading. What about the online trading? Online trading means you are using the mobile application or website through the internet. तो ऑनलाइन ट्रेडिंग होगा। तो कोई मुझे बताएगा दोनों में से क्या अच्छा और फास्टर है, ऑफलाइन ट्रेडिंग और ऑनलाइन ट्रेडिंग? विच वन इज गुड, ऑनलाइन और ऑफलाइन? Online, sir.
ऑनलाइन, यस, ऑनलाइन इज मच फास्टर बिकॉज आपके मोबाइल के फिंगर टिप्स पर है कि आपको इमीडिएटली बाय करना है, इमीडिएटली सेल करना है। ऑफलाइन में थोड़ा डिले हो सकता है, आपने अपने आरएम को कॉल किया, ब्रोकर को कॉल किया, ब्रोकर का कॉल नहीं लगा, ब्रोकर ने फोन उठाया, फिर वो आपका ऑर्डर सुनेगा, फिर वो आपका ऑर्डर कंफर्म करेगा, देन वो ऑर्डर प्लेस करेगा, तो मे बी जो प्राइस पर आप बाय करना चाहते थे वो प्राइस वहां से निकल जाए। पर दोनों फैसिलिटी अवेलेबल है मार्केट में आज की डेट में, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। नाउ दिस इज द स्टेप टू ओपन डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। सो आप किसी ब्रोकर के साथ अपना डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं बाय द टू वे, ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑफलाइन के लिए आपको ब्रोकर के ऑफिस में जाना होगा, अपने सारे केवाईसी डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे एंड इट विल टेक 10 to 15 days टू ओपन योर अकाउंट। बट अगर आप फास्टर और इमीडिएटली अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन मोड का इस्तेमाल करें, जहां पर आप कंपनी की वेबसाइट पर या फिर उसकी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट सबमिट करें और विद इन 1 day आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। सो व्हाट आर द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू ओपन डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट? नंबर 1, पैन कार्ड। पैन कार्ड इज मस्ट, बिना पैन कार्ड के आप अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। नंबर 2, आधार। आधार आल्सो मस्ट डॉक्यूमेंट, ये दोनों डॉक्यूमेंट बिल्कुल कंपलसरी है, इसके बिना तो आप अकाउंट के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। देन बैंक स्टेटमेंट, बैंक पासबुक और वी कैन से बैंक डिटेल्स, बैंक डिटेल्स आपको देनी होती है। सिग्नेचर लगते हैं आपके, फोटोग्राफ्स लगते हैं, बेसिक डिटेल्स लगती हैं आपकी, एंड एक सेल्फी लगता है आपका, सेल्फी या फिर वीडियो वो देना होता है। ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन हो जाता है। क्या कोई माइनर जस्ट लाइक यू डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं? टेल मी यस और नो। Yes. यस, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर गार्जियन। आप अपने पेरेंट और गार्जियन की हेल्प ले सकते हैं और आप अपने नाम पे भी अपना डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बस कंडीशन ये रहेगी कि आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे, आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। वंस यू बिकम एडल्ट, आप जैसे 18 साल या उससे ऊपर के हो जाएंगे, फिर आप अपने अकाउंट को ट्रांसफर करा लीजिए। ट्रांसफर से मतलब माइनर से मेजर में करा लीजिए, देन फिर आप अपने उसी अकाउंट के अंदर ट्रेडिंग भी कर पाएंगे और इन्वेस्टमेंट भी कर पाएंगे। डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने की प्रोसेस समझ में आ गई आप सभी को? इसमें कोई डाउट है किसी को? नो सर। नहीं, ठीक है। सर ये जो ऑनलाइन और ऑफलाइन है सर, ऑनलाइन के अंदर वो वाला आएगा ना, डिस्काउंट डिस्काउंट सर्विस ब्रोकर? वो तो मेजरली देखिए क्या होता है कि डिस्काउंट ब्रोकर जो होते हैं वो तो आपको ऑनलाइन फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि उनके ऑफिसेस नहीं होते। चिरोडा का ऑफिस हाँ नहीं है, उसका ऑफिस हाँ हेडक्वार्टर जो है मुंबई में, हैदराबाद में ही है। एंजल वन का जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में ही है, दिल्ली में ही है। वो आपको कहीं पे इंदौर में, लखनऊ में, गुवाहाटी में नहीं मिलने वाला। बट वहीं पे जो फुल सर्विस ब्रोकर है जस्ट लाइक एचडीएफसी, मोतीलाल ओसवाल, शेर खान, इनके ऑफिस आपको हर सिटी में मिल जाएंगे। तो अगर ऑफिस अगर है तो फिर आप ऑफलाइन भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उनके ऑफिस में जाइए, डॉक्यूमेंट सबमिट करिए, अकाउंट ओपन कर लिए। बट आप चाहते हैं कि कौन ऑफिस जाए, उनकी एप्लीकेशन अवेलेबल है, एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वेबसाइट पे जाइए, वहां से भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अच्छा, For the मतलब वो discount दोनों। broker, yeah, for the discount broker only online facilities available. ऑफलाइन अकाउंट ओपन नहीं कर पाएंगे आप डिस्काउंट ब्रोकर के साथ में। ओके सर। ऑलराइट, क्या कोई चार्ज लगता है डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने में? इज देयर एनी चार्ज टू ओपन डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट? इट डिपेंड टू द ब्रोकर, जस्ट लाइक एंजल वन, ग्रो, अपस्टॉक, they are not taking a charges to open demat account, whereas Zerodha is taking a charges of 200 rupees to open demat account. तो डिपेंड ब्रोकर टू ब्रोकर, एवरीथिंग इज डिपेंड ब्रोकर टू ब्रोकर। कुछ ब्रोकर ऐसे हैं जो आपको इंट्राडे के अंदर, इंट्राडे मतलब होता है सेम डे ट्रेडिंग, आज ही खरीदा और आज ही बेचा, और डिलीवरी मतलब होता है आज खरीद लिया फिर आप उसको कल के लिए, परसों के लिए, 10 साल के लिए होल्ड कर लिया। तो कुछ ब्रोकर ऐसे हैं जो इंट्राडे पे भी और डिलीवरी पे भी ब्रोकर चार्ज नहीं करते, लाइक कोटक सिक्योरिटीज। उसमें आपको वन टाइम कुछ एक प्लान लेना होता है 400 रुपीज का, 500 रुपीज का, उसके बाद फिर आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं इंट्राडे के अंदर, डिलीवरी के अंदर, ब्रोकरेज के। और अगर आप एंजल वन, जीरोडा, अपस्टॉक की बात करेंगे तो ये आपको डिलीवरी पर फ्री देते हैं, इंट्राडे में आपको 20 रुपीज पर ऑर्डर का ब्रोकरेज देना पड़ता है।
बट अगर हम बात करते हैं फुल सर्विस ब्रोकर की, मोतीलाल ओसवाल, शेर खान, स्वास्तिका, इनमें आपको इंट्राडे पे भी चार्ज देना होगा, डिलीवरी पे भी चार्ज देना होगा। तो डिपेंड ब्रोकर टू ब्रोकर। जो ब्रोकर जितनी ज्यादा ब्रोकरेज लेगा उतनी प्रीमियम सर्विसेज आपको देगा, और जो ब्रोकर आपको कम ब्रोकरेज आपसे चार्ज करेगा उतनी ही आपको वो लेस फैसिलिटी वाली सर्विसेज देगा। फिर आपको हर एक फैसिलिटी के लिए अलग से अमाउंट पे करना होगा। यहां तक अंडरस्टूड है, सब कुछ समझ में आया? डीमेट अकाउंट क्या होता है, ब्रोकर बेसिकली कैसे वर्क करते हैं। आप में से किस किस का डीमेट अकाउंट है? एनीवन इज अ डीमेट अकाउंट? दक्ष, सियोना, सुमायरा, व्योमा? No, sir. No, No, sir. sir. Okay, note. Okay. You can open your डीमेट अकाउंट विद टेक योर हेल्प विद द गार्जियन। आप अपने गार्जियन की हेल्प लीजिए और छोटा छोटा आप एक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। आप 100 रुपीज, 200 रुपीज, 500 रुपीज का मंथली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करिए। इफ यू आर नॉट एबल टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स, सो यू कैन इन्वेस्ट इन अ म्यूचुअल फंड। आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वेयर यू कैन स्टार्ट योर एसआईपी फ्रॉम 500 रुपीज ओनली। 500 रुपए हर महीने लगाइए, आपका इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाएगा। आज से 10 साल के बाद वो 500 रुपए आपके कब 5 लाख रुपीज बन जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। सो अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं भी कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना स्टार्ट करिए कि जब आप एडल्टहुड में आएंगे, जब आपके पास इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर आप कहां से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करेंगे। व्हाट वुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी? आप स्टॉक्स की तरफ जाएंगे, म्यूचुअल फंड की तरफ जाएंगे, बैंक एफडी की तरफ जाएंगे, सेविंग की तरफ जाएंगे, या फिर आप अननेसेसरी आइटम जैसे कि गैजेट्स हो गए, इम्पल्सिव बाइंग हो गई है, वहां पर जाके आप अपना पैसा खर्च करेंगे। यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम राइट नाउ। जब प्लानिंग आपकी आज से स्टार्ट होगी तो उसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। तो फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए आपको अभी से सोचना होगा कि मुझे कितना मनी स्टार्ट करना होगा। फॉर एन एग्जांपल, दक्ष, कुड यू टेल मी व्हाट अमाउंट यू रिक्वायर टू गेट अ बेटर रिटायरमेंट? व्हाट डू यू थिंक? Sir, not sure exactly. स्टिल मतलब अप्रोक्सीमेटली 10 करोड़ रुपीस, 50 करोड़ रुपीस, 1 करोड़ Yeah, रुपीस, 10 2, करोड़, 3 crore. Yeah. 2 to 3 crores. Okay, so you require 2-3 करोड़ रुपीस। ओके, अब देखो दक्ष, यहां पर मैं आपको करेक्शन देता हूं। लिसन एवरीबडी, लिसन। अभी मे बी आपकी एज क्या होगी? 16. 16। ओके, नाउ यू थिंकिंग डेट कि 16 अभी आपकी एज है एंड यू विल गेट रिटायर्ड एट द एज ऑफ 60। तो यहाँ पे कुछ 40 इयर्स का डिफरेंस आ रहा है। एक मैं अप्रोक्सीमेट टेंटेटिव लूं, 40 इयर्स का आप सोच के चल रहे हैं। एंड दक्ष, यू सेड कि 2 to 3 करोड़ रुपीस मुझे रिक्वायर्ड होंगे। डू यू थिंक कि 40 साल के बाद वो 3 करोड़ रुपए की वैल्यू उतनी रहेगी जितनी आज है? No, sir. नो ना? यस, दैट इज कॉल्ड अ फाइनेंशियल प्लानिंग। आपको 40 साल के बाद, आपने अभी के हिसाब से सोचा है कि 3 करोड़ रुपए मेरे लिए बहुत बड़ी अमाउंट है, पर 40 साल के बाद ये 3 करोड़ रुपए आपके 3 लाख रुपए के बराबर रहेंगे। तो आपको वो 40 साल के बाद लिविंग के लिए कितना एक्सपेंस लगेगा वो अभी से सोचना होगा। सो दैट वुड बी अराउंड मिनिमम टू मिनिमम 20 to 25 करोड़ रुपीस। वो 2 करोड़ रुपीस जो आज आपको दिख रहे हैं ना, उसको एंजॉय करने के लिए आपको 25 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि इन्फ्लेशन इतना होगा कि आपके मनी को वो खाता जाएगा, डिप्रिशिएट करता जाएगा। तो यू रिक्वायर्ड एटलीस्ट 20 करोड़ रुपीस। तो 20 करोड़ रुपीस कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना होगा, कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा, ये सब फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर आता है। वो आपको अभी से सोचना स्टार्ट करना होता है, क्योंकि अभी आप 16 के हैं, 2 साल के बाद आप 18 के हो जाएंगे। उसके बाद तो फिर आपके पास सारी फ्रीडम है, जहां इन्वेस्टमेंट करना है, जहां ट्रेड करना है करिए। पर बिफोर दैट यू मस्ट हैव अ नॉलेज अबाउट कि कहाँ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो 2 साल के अंदर आपको ये नॉलेज ले लेना चाहिए कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, कितना मनी इन्वेस्टमेंट करना होगा। मेरा सबसे पहले तरफ इन्वेस्टमेंट किधर जाएगा? म्यूचुअल फंड की तरफ, स्टॉक की तरफ, गोल्ड की तरफ, प्रॉपर्टी की तरफ, बैंक अकाउंट की तरफ, किधर जाएगा वो आपको अभी से डिसाइड करना होगा। और आई एम गिव यू गारंटी, ये पूरा प्रोग्राम अगर आपने अच्छे से समझ लिया, सारे रिकॉर्डेड वीडियो अगर आपने देख लिए, मेरे लाइव सेशन को आपने अटेंड किया, सारे क्वेश्चन पूछे, एट द लास्ट डे
आपको सब कुछ एक नॉलेज मिल चुका होगा कि कौन सा प्रोडक्ट कब अच्छा रहेगा और कब बुरा रहेगा. So Daksh, you not require 2 crore rupees, you would require at least 20 crore rupees to get a better retirement. Yes. Okay, sir. Okay? ऐसे बहुत से क्वेश्चंस और भी होंगे जो मैं टिपिकली आपसे लाइव सेशन पूछूंगा. फॉर एन एग्जांपल, ये तो हमने समझ लिया कि 20 करोड़ रुपीस रिक्वायर्ड है. क्या मुझे बता सकते हो 20 करोड़ रुपीस को अचीव करने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होंगे जहां आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो? दक्ष बताओ. Sir, funds, stocks, bonds, derivatives इन सब में. ओके, डू यू थिंक दीज आर रिस्क फ्री प्रोडक्ट जो आपने बोले हैं? सर रिस्क है. रिस्क है. सी, दिस इज कॉल्ड अब डाइवर्सिफिकेशन. आपको हमेशा स्टॉक की तरफ नहीं जाना है. आपको अपने पोर्टफोलियो में इस तरह से मैनेजमेंट करके चलना है कि कुछ मनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट हो, कुछ मनी रियल एस्टेट के अंदर हो ताकि मुझे स्टेबल रिटर्न मिले, भले धीरे मिले. कुछ मुझे बॉन्ड की तरफ जाना है ताकि मुझे गारंटी रिटर्न मिले, और कुछ मुझे बैंक अकाउंट की तरफ जाना है जहां पे मुझे लिक्विडिटी मिलती रहे. जब कोई इमरजेंसी आ जाए तो मैं अपने फंड को निकाल सकूं. तो सब जगह पर आपको थोड़ा थोड़ा अपनी नीड के अकॉर्डिंग, रिस्क के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करना होता है. तब जाके आप अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव कर पाओगे, तब जाके आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जा पाओगे. ये हम सब कुछ बात करेंगे, धीरे धीरे सब कुछ समझेंगे. अभी के लिए, आज के लिए इतना ही था. मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा. कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लीजिए. मेरा आज कैमरा वर्क नहीं कर रहा है, so आई एम सो सॉरी कि मैं कैमरा ऑन नहीं रख पाया. एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस? Yes or no? You can tell me yes or no. No, no, sir, no. No, sir. No, sir. Yes, sir. तो सेंड मी द स्क्रीनशॉट ऑफ द युवा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको नहीं दिख रहा है प्री रिकॉर्डेड वीडियो. मैं डायरेक्टली उनसे बात करता हूं, मैं चेक करता हूं कि ये टेक्निकल एरर है या फिर आप गलत जगह पे नेविगेट हो रहे हैं. वो मैं चेक करके आपको अपडेट कर दूंगा. पर प्लीज स्टार्ट वॉचिंग द प्री रिकॉर्डेड वीडियो so that you can aware about the topics. Okay, sir. Okay, so Thank you, thank you sir. so much guys to join this session. We will meet very soon in the next live session. Till the time, happy learning. Thank you. Good night. Thank you. Yes, sir.